کسی کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، اور اللہ کی بے شمار درود و سلام اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، اور خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، دینی میٹھے بھائیوں، پردہ نشین لائق صد احترام معزز خواتین حضرات اور عزیز بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے دجال کہاں ہے اور اسے کس نے دیکھا ہے۔ یہ بات بالکل مسلم ہے کہ دجال کوئی جنوں میں سے نہیں ہے، کوئی شیطانوں میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ انسانوں میں سے ہے۔ دجال کا جنم ہوگا نہیں بلکہ دجال کا جنم ہو چکا ہے۔ دجال وہ دنیا کے اندر ہے، زندہ ہے، موجود ہے۔ تمیم نے دجال کو دیکھا ہے اور اس کے ساتھ 30 اور لوگ ہیں جو اس بات کا گواہ ہیں، اور خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بات جو تمیم داری نے بتائی تو اللہ کے نبی نے تمیم کے باتوں کی تصدیق بھی کی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث لمبی حدیث ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کہ آج کا یہ جمعہ صرف ایک ہی حدیث میں پورے جمعہ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس سے ملتی جلتی اور کئی حدیثیں ہیں، اور یہی حدیث سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ ہم صحیح مسلم کی حدیث سے اپنی باتوں کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عامر بن شراحیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک سوال کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک ایسی حدیث بتائیے جس حدیث کو آپ نے بلا واسطہ نہیں بلکہ بل واسطہ، انڈائریکٹ نہیں بلکہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سنا ہے۔ عامر بن شراحیل یہ فاطمہ سے پوچھتے ہیں، یہ فاطمہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ نہیں ہے بلکہ یہ کوئی دوسری فاطمہ ہے جس کے باپ کا نام قیس ہے۔ یہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک خاتون ہے، یہ ایک عورت ہے، یہ ایک صحابیہ ہے۔ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک ایسی حدیث سنائیے جس حدیث کو آپ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنا۔ آپ کسی اور کی طرف نسبت نہ کریں کہ ہم نے فلاں سے سنا ہے، فلاں سے سنا ہے، فلاں نے کہا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، بلکہ جو حدیث آپ نے اپنے کانوں سے نبی کے زبان سے نبی کے سامنے سے جس حدیث کو آپ نے سنا ہے بالکل وہی حدیث آپ ہمیں بتائیے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہی بات ہے تو میں بالکل
जारी करूंगी, यानी मैं आपको वही हदीस बताऊंगी जिस हदीस को मैंने डायरेक्ट अपने कानों से, नबी के ज़बान से, नबी के सामने से जिसको मैंने सुना है, वही हदीस मैं आपको सामने बयान करूंगी। फिर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तफसील के साथ वो हदीस बयान करती है। वो बयान करती है कि अब्दुल हमीद इब्न हफ्स इब्न मुगैरा से मेरा निकाह हुआ था और इब्न मुगीरा उस वक्त कुरैश के जवानों में ये बेहतरीन जवान थे। उन्होंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में शिरकत भी की थी और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा वो अपने पहले जिहाद में जख्मी भी हुए थे। वो एक बेहतरीन नौजवान थे, लेकिन उन्होंने मुझे तलाक दे दी। पहले ही 2 तलाक उन्होंने मुझे दे करके रखा था, तीसरी तलाक भी उन्होंने मुझे दे दी। जब मेरा निकाह खत्म हो गया, जब मेरी तलाक हो गई, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से कई लोगों ने मेरे पास निकाह का पैगाम भेजा और उन लोगों में से अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी थे। उन्होंने भी उन लोगों के साथ मेरे पास निकाह का पैगाम भेजा। फिर खुद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आजाद करदा गुलाम के बेटे हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए मेरे पास निकाह का पैगाम भेजा। एक पैगाम मेरे पास आए और मुझे मालूम था पहले से ही, मैंने लोगों से पहले ही सुन रखा था, लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है उसको चाहिए कि वो उसामा से भी मोहब्बत करे। फिर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे मामले के बारे में मुझसे दरियाफ्त किया, तो मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मामला आपके हाथ में है, आप जिससे चाहे मेरा निकाह करा दे। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि तुम इद्दत गुजारने के लिए उम्मे शरीक के यहाँ मुंतकिल हो जाओ। उम्मे शरीक ये अंसार की एक बहुत ही मालदार खातून थी और बहुत ही ज्यादा मेहमान नवाज थी। इनके यहाँ हर हमेशा मेहमान आते जाते रहते थे। चुनांचे उन्होंने कहा ठीक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उम्मे शरीक के यहाँ चली जाती हूँ। फिर उसके बाद दोबारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं तुम वहाँ नहीं जाओगे, क्योंकि ये उम्मे शरीक एक ऐसी खातून है, ये एक ऐसी औरत है जिसके यहाँ हमेशा मेहमान आते जाते रहते हैं, इसके यहाँ बहुत ज्यादा मेहमान आते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम उस घर में रहोगी और उनके वहाँ जब मेहमान आएंगे और तुम्हारी ओढ़नी जब तुमसे गिर जाएगी या फिर तुम्हारी पिंडली से जब कपड़े हट जाएंगे और उनमें से किसी की नजर ऐसी जगह पर पड़े जिससे तुम्हें नागवार लगे, जो तुम्हें नापसंद हो, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम वहाँ ना रहो, बल्कि तुम ये करो कि तुम अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न उम्मे मक्तूम अपने चचाजाद के यहाँ तुम चली जाओ, क्योंकि ये उम्मे मक्तूम ये एक नाबीना आदमी है, ये आंखों से इनको दिखाई नहीं देता है, ये अंधे हैं, इनको दिखाई नहीं देता है। उस घर में तुम रह करके अगर तुम कपड़े भी बदलोगी और तुम अपने ओढ़नी भी उतारोगी तो वो तुम्हें देख नहीं पाएंगे, इसलिए मुनासिब है कि तुम वहीं चले जाओ। चुनांचे वो कहते हैं कि ठीक है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं वहीं चली जाती हूँ। फिर उसके बाद ये फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहाँ चली जाती है और वहाँ जाके इद्दत गुजारती है। इद्दत खत्म हो गई, इद्दत मुकम्मल हो गई। फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये खुद बयान करती है अपनी ज़बान से। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक ऐलान करने वाले ने ऐलान किया, एक निदा लगाने वाले ने निदा लगाई, आवाज लगाई, अस्सलातु जामिअतुम, के लोगों जमात खड़ी होने वाली है, लोगों जमात खड़ी होने वाले लोगों नमाज के लिए जमा हो जाओ। जब ये कॉल आया हमारे पास, हालांकि आमतौर पर ऐसा होता ही था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जब मुअज्जिन अज़ान देता मस्जिद के अंदर, तो खुद ब खुद लोग मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए चला जाया करते थे। जब भी अज़ान होती तो लोग अपने आप नमाज के लिए मस्जिद के अंदर चले जाते थे। उस जमाने में कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो मुसलमान हो और नमाज ना पढ़ता हो, बल्कि मुनाफिकीन भी नमाज पढ़ा करते थे। हाँ, ये बात अलग थी कि मुनाफिकीन जो थे उनके अंदर नमाज में सुस्तियां थी, वो नमाज बहुत ताख़ीर से पढ़ने आया करते थे, बहुत देर से वो पढ़ने आया करते थे। लेकिन नमाज तो जो भी मुसलमान था, चाहे मोमिन हो या मुनाफिकीन, नबी के जमाने में जितने लोग थे सब मस्जिद में आके नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन नबी की तरफ से जो ये ऐलान हुआ, ये एक इमरजेंसी कॉल था, ताकि कोई भी इंसान घर में ना रहे और वक्त पर वो मस्जिद के अंदर पहुंच जाए। ये इमरजेंसी कॉल था, अस्सलातु जामिअतुन, के लोगों नमाज के लिए जमा हो जाओ, जमात खड़ी होने वाली है। चुनांचे सारे के सारे लोग मस्जिद के अंदर पहुंचे। फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये बयान करती है कि मैं भी अपने घर से निकली और मैं भी जाके मस्जिद में पहुंची, और मस्जिद में पहुंचने के बाद औरतों के सफों में जाके मैं खड़ी हो गई, और बिल्कुल मर्दों के बिल्कुल जस्ट उनके सामने ही में मर्दों का जो आखिरी सब था, आखिरी सब के मर्दों के पीछे ही बिल्कुल मैं फ्रंट में जाके खड़ी हो गई, और वहाँ खड़ी होके मैं नमाज पढ़ने लगी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए वो मिंबर पे आकर के खड़े हो गए। और मिंबर पे खड़े होने के बाद लोगों से कहा कि लोगों जितने भी आदमी हो, सब के सब अपनी अपनी जगह पर अपनी नमाज की जगह पे बैठा रहे, कोई भी इधर से उधर ना हो, सब अपनी जगह अपनी नमाज की जगह में बिल्कुल बैठा रहे। लोगों, आज मैंने तुम्हें जो यहाँ जमा किया है, ये मैं तुम्हें किसी तरकीब या तरहीब के लिए नहीं जमा किया है, यानी किसी बात की तरफ रग़बत दिलाने के लिए या किसी चीज से डराने के लिए मैंने तुम्हें जमा नहीं किया है, बल्कि मैंने तो तुम्हें यहाँ इसलिए जमा किया है कि तमीमदारी आया हुआ है। ये तमीमदारी, ये नसरानी था, ये ईसाई था, वो आया और उसने मेरे हाथ पे बैयत की और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और आज उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जो बात इससे पहले मैं तुम्हें बताया करता था, बिल्कुल मेरे बातों के मुआबिक तमीमदारी की बात थी। जो बात मैंने दज्जाल के ताल्लुक से तुम्हें बतलाई थी, वही बात आज तमीम ने मुझे आके बतलाई। उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा, तमीम वही बगल में बैठे हुए थे, कहा तमीम आया है, इसने मुझे बताया कि फिलिस्तीन से 30 आदमियों का एक काफिला निकला और वो समुद्र में गए, कश्ती में सवार हुए। इत्तेफाकन उसी वक्त एक जोरदार का तूफान आया, और इस तूफान ने और समुद्र की मर्दों ने और समुद्र की लहरों ने इनके कश्ती को इधर से उधर धक्का दिया, और फिर ये अपना रास्ता भूल गए, ये अपने रास्ते से महरूम रह गए। फिर समुद्र की ये लहरें और समुद्र की मौजें और ये समुद्र की जो ये तूफान जो था, इनको इधर से उधर भटकते रहे, कभी इधर तो कभी उधर, तो कभी दाएं तो कभी बाएं, कभी आगे तो कभी पीछे। महीनों दिन तक ये समुद्र में चक्कर काटते रहे, कहीं जाए कहाँ ना जाए कोई अता पता नहीं।
लगे। ये पटकनी खाने के बाद ये एक वादी के सामने जाकर के पहुंचे। जब वादी के सामने जाकर के पहुंचे, उन्होंने उस कश्ती से एक छोटी कश्ती निकाली। आमतौर पर बड़ी कश्तियों में, बड़े जहाजों में छोटी कश्तियां रखते हैं लोग, ताकि इमरजेंसी में कोई काम दे। छोटी कश्ती को उन्होंने फौरन निकाला और छोटी कश्ती में सवार होकर के वो उस वादी के अंदर जाकर के दाखिल हो गए। जब वादी के अंदर पहुंचे तो वादी में उन्होंने देखा कि एक अजीब तरह की मखलूक है। इस तरह की मखलूक कभी उन्होंने देखा नहीं था, जो बहुत ज्यादा कपड़े पहने हुए, रेंगने वाली थी और उनके बाल दिखे हुए थे। उनके बाल इतना ज्यादा थे कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि इसका आगे क्या है और इसका पीछे क्या है, पता ही नहीं चल रहा था। इतने ज्यादा बाल थे कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका आगे क्या है पीछे क्या है। कहने लगे, तुम्हारा बुरा हो, ये तुम कौन सी बला हो? कहने लगी, मैं जस्सासा हूं, यानी बहुत ज्यादा जासूसी करने वाली हो। कहा, जरा तुम अपने बारे में बताओ। कहा, ना ही मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताऊंगी और ना ही मैं तुमसे कुछ पूछूंगी, बल्कि तुम लोग चलो इस वादी के आखिर में, इस वादी के आखिर में राहिबों की एक इमारत है और उस इमारत के अंदर एक आदमी है जो तुम्हारी खबरों का मुश्ताक है, शिद्दत से, बहुत ही शिद्दत से तुम्हारी खबरों का मुश्ताक है। वो तुमसे कुछ खबर लेना चाहता है और तुम्हें कुछ खबर देना भी चाहता है। तुमसे कुछ पूछेगा भी और तुम्हें कुछ बताएगा भी। तुम चलो उस आदमी के पास। चुनांचे इन्होंने कहा, हम तो और ज्यादा डर गए जब इन्होंने कहा कि वादी के आखिर में एक आदमी है। हमने सोचा कहीं ये कोई शैतान तो नहीं है और किसी शैतान के चक्कर में तो हम नहीं आ गए। और टाइम क्या था, वक्त क्या था, जब ये लोग वादी में पहुंचे तो बिल्कुल सूरज डूबने का वक्त था, सूरज डूबने वाला था। ऐसे टाइम में जाकर के वादी में ये लोग पहुंचते हैं। चुनांचे उन्होंने कहा, हम डर गए और जल्दी जल्दी तेजी के साथ हम उस वादी की तरफ जाने लगे और उस इमारत के अंदर हम पहुंचे। जब हम उस इमारत के अंदर पहुंचते हैं, हमने देखा कि एक अजीब मखलूक है, एक अजीब खिलकत है। इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा इंसान, क्या इससे पहले हमने कभी भी इतना बड़ा इंसान देखा ही नहीं था। इतना बड़ा इंसान, सख्ती के साथ वो बांधा हुआ है, सख्ती के साथ उसे जकड़ करके बांध दिया गया है। उसके दोनों हाथों को गर्दन के साथ मिला करके बांध दिया गया है और उसके पैरों को उसके घुटने से लेकर टखने तक लोहे की जंजीरों में सख्ती के साथ जकड़ दिया गया। हमने उसे देखा, कहा, तुम्हारा बुरा हो तुम कौन है? कहा, पहले तुम ये बताओ, मैं बाद में बताऊंगा तुम लोग कौन हो और इस वादी में कैसे पहुंचे। चुनांचे तमीमदारी करते हैं कि मैंने सारा किस्सा, सारी कहानी बता दी कि हम 30 आदमियों का काफिला था, समुद्र में सवार हुए, कश्ती में चढ़े, तूफान ने हमें इधर से उधर भटका दिया, फिर हम इस वादी में आकर के पहुंचे। ये तुम्हारी वादी है। तुम्हारी वादी में जब हम दाखिल हुए, हमें इस तरह का एक रेंगने वाला, बहुत ज्यादा कपड़ा पाने वाला और घने बालों वाला एक अजीब मखलूक हमें मिला, जानदार मिला। चुनांचे उसने कहा कि तुम, हमने पूछा कौन हो? उसने कहा, हम जस्सासा हैं। हमने उससे सवाल और जवाब किया तो उसने कहा कि चलो वादी के आखिर में एक आदमी है और वो तुम्हें तुम्हारी खबरों का मुश्ताक है। हम आए हैं लेकिन हम बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, जरा ये बताओ तुम कौन हो? वो कहने लगा, मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ। और 4 सवाल करता है वो, कहता है कि तुम बताओगे कि तुम जुगर के चश्मे का क्या हाल है? जुगर के चश्मे, जुगर ये शाम का एक रहता है, कहा जुगर के चश्मे का क्या हाल है, क्या खबर है बताओ। कहा कि तुम जुगर के चश्मे के बारे में क्या जानना चाहते हो? कहा चश्मा के अंदर पानी है कि नहीं है? कहा पानी तो बहुत ज्यादा है, पानी तो भरा हुआ है, बिल्कुल उथल-पुथल है। कहा कि वहाँ के लोग उस चश्मे से सैराब कर रहे हैं कि नहीं, खेती बाड़ी कर रहे हैं कि नहीं? कहा कि लोग खूब खेती
करीब उसका पानी सूख जाएगा, उसका पानी खत्म हो जाएगा। कहा तुम हमें परेशान के खजूरों के बारे में बताओ। ये उर्दू और फिलिस्तीन के बीच में एक जगह परेशान है, तो परेशान के खजूरों के बारे में बताओ। कहा क्या जानना चाहते हो परेशान के खजूरों के बारे में? कहा से परेशान के खजूरों में फल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? कहा बहुत ज्यादा फल आ रहे हैं, कहा बहुत ज्यादा फल आ रहे हैं। अनकरीब उसका अनकरीब वो फल देना बंद कर देंगे। कहा हमें बुहैरा तबरिया के बारे में बताओ। कहा बुहैरा तबरिया के बारे में क्या जानना चाहते हो? कहा बुहैरा तबरिया के अंदर पानी है कि नहीं है? कहा बहुत ज्यादा पानी उसके अंदर है। कहा करीब उसका पानी बहुत गहराई तक चला जाएगा। कहा हमें आखिरी चौथा सवाल उसने किया, अब हमें नबी उम्मी के बारे में बता। वो नबी जो उम्मियों की तरफ भेजा गया है, जो अरबों की तरफ भेजा गया है, उस नबी के बारे में जरा हमें बताओ कि वो नबी भेजा गया है या नहीं भेजा गया है? वो नबी मबूस हुआ है कि नहीं हुआ है? कहा कि हाँ वो नबी मबूस हो चुका है। कहा तो फिर क्या हुआ? कहा उसने मक्का से निकल करके मदीना के अंदर सुकूनत इख्तियार कर ली है। अरबों ने उनके साथ लड़ाई की या नहीं की? अरबों के लोगों ने उनके साथ लड़ाई की। फिर उस नबी ने उसके साथ क्या किया? कहा कि उनके अगल बगल में आजू बाजू में जितने भी अरब कबाइल थे सबके ऊपर वो नबी गालिब आ गया और लोगों ने उसकी इताअत और फरमाबरदारी कर ली। का लोग ज्यादा उनकी इताअत कर रहे हैं, ज्यादा इस्लाम कबूल कर रहे हैं या कम? का ज्यादा लोग उनकी इताअत और फरमाबरदारी कर रहे हैं, ज्यादा लोग उनकी इताअत और फरमाबरदारी कर रहे हैं। वो कहता है और यही कबीलदारी इस्लाम लाने का ये सबब बना। वो कहता है उनके लिए उस नबी की इताअत और फरमाबरदारी करना ही बेहतर है। उन लोगों के लिए उस नबी की इताअत और फरमाबरदारी करना ही बेहतर है। उसके बाद उसने एक जोरदार का छलांग लगाया और ऐसा मालूम होता था उसके छलांग लगाने की वजह से कि करीब था कि वो अपने चक्कर से आजाद हो जाए, वो अपने कैद खाने से आजाद हो जाए। उसके बाद उसने कहा सुनो मैं ही मसीह दज्जाल हूँ, मैं ही दज्जाल हूँ और अनकरीब मैं निकलने वाला हूँ। अनकरीब मुझे निकलने की इजाजत दे दी जाएगी और मैं पूरी दुनिया के अंदर चक्कर लगाऊंगा, हर जगह पहुंचूंगा, हर खुशकी में, हर तरी में, हर पानी में। दुनिया का कोई भी बस्ती ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पर मैं नहीं पहुंचूंगा। सिर्फ मक्का और मदीना को छोड़कर जितनी भी बस्तियां होंगी 40 रातों के अंदर मैं पूरी दुनिया के अंदर हर बस्ती में, हर जगह में पहुंच जाऊंगा सिवाय मक्का और मदीना के। क्योंकि मक्का और मदीना में दाखिल होना अल्लाह ने मेरे लिए हराम कर दिया है। जब मैं मक्का के अंदर जाऊंगा या मदीने के अंदर जाऊंगा तो जब मैं रुक करूंगा उधर जब मैं जाऊंगा तो एक फरिश्ता मेरे सामने आ जाएगा और तलवार सोच के खड़ा हो जाएगा और मुझे अंदर जाने से वो रोक देगा। मक्का और मदीने के जितने दरवाजे होंगे हर एक दरवाजे पे अल्लाह के मुहाफिज फरिश्ते, ये बॉडीगार्ड फरिश्ते ये खड़े रहेंगे, मुझे जाने नहीं देंगे। चुनांचे उसके बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा बिन्त क़ैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी के हाथ में जो असा थी अपने असा से मिंबर के ऊपर मारा जोर से और मिंबर के ऊपर मारने के बाद नबी ने कहा यही तैयबा है, यही तैयबा है, यही तैयबा है। यानी मदीना को अल्लाह के नबी ने तैयबा कहा। तैयबा से मुराद नबी की ये थी कि मदीना यही तैयबा है, दज्जाल यहाँ नहीं आ सकता। लोगों क्या मैं तुम्हें नहीं कह रहा था कि मैं क्या तुम्हें ये बातें नहीं बताया करता था? क्या तमीम ने जो बात मुझे बताई वो बात मैंने तुम्हें नहीं कहा था? लोगों ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा क्या मैंने तुम्हें मक्का और मदीना के बारे में नहीं कहा था? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी ने फरमाया कि खबरदार वो या तो शाम के समुद्र में होगा या तो यमन के समुद्र में होगा, नहीं बल्कि वो
मशरिक के जानिब में होगा, वो जो भी है वो मशरिक के जानिब में होगा, वो मशरिक के जानिब में होगा। अल्लाह के नबी ने 3 बार कहा और अपने हाथ से इशारा किया मशरिक की तरफ कि वो उधर ही होगा, वो उधर ही होगा, यानी मशरिक की तरफ होगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, अब अखीर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को हर तरह की छोटी बड़ी जो भी फितने हैं, फसादे, हर तरह के फितनों फसाद से महफूज रखे, और खुसूसन दज्जाल की फितना से हमें अल्लाह ताला महफूज रखे।